السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان ٹھوکر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلت سے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ ملک بھر کی طرح نوابشاہ میں بھی پولٹری مافیا بے لگام ہو چکا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رپورٹ کریں گے آصف رضا۔ ملک بھر کی طرح نوابشاہ میں بھی چکن گوشت کے داموں میں مسلسل اضافے کے باعث چکن گوشت 480 سے لے کر 520 تک فروخت ہو رہا ہے، جو نہ صرف عوام کی قوت خرید سے باہر ہوا بلکہ چکن گوشت فروش بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دکاندار ہیں 50% نوابشاہ شہر میں بند ہو چکی ہیں۔ ابھی جو 320 روپے مرغی سپلائی ہے، گوشت 520 کا ریٹ ہے، لیکن ہم چلا رہے ہیں 480 روپے، یہ بھی لاس کے اندر چل رہا ہے۔ ایک طرف چکن فارمرز مافیا فیڈ مہنگی ہونے کا راگ الاپ کر چوزے سے لے کر مرغی مہنگی کرنے کا جواز بنا رہا ہے، تو دوسری جانب ماہرین معاشیات نے فیڈ مہنگی ہونے کی بنا پر مرغی کے دام بڑھانے کے جواز کو مسترد کرتے ہوئے اصل وجہ رانی کھیت کی بیماری کی لہر سے ہونے والے کروڑ روپے کے نقصان کو عوام سے وصول کرنا گردانہ ہے۔ چکن کی جو مافیا ہے، جو شیڈ مافیا ہے، انہوں نے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹ ایک اپنے جو ہے وہ جو ہے قوت سے یا اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک لاس ہوا جو چکس کی صورت میں کہ ان کا چکس جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوا یا ان کی جو گروتھ نہیں ہوئی۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے چکن سمیت اشیاء خرد و نوش کے داموں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی مافیا سر اٹھاتا ہے اور عوام پر مسلط ہو کر منافع اور نقصان دونوں ہی عوام سے وصول کر کے یا تو چھو منتر ہو جاتا ہے یا پھر حکومت سے رعایت حاصل کر لیتا ہے۔ کیمرہ آصف رضا عاشق، بیورو چیف، سچ نیوز، نوابشاہ۔ مرغی کا گوشت غریب کی قوت خرید سے باہر ہو چکا۔ جیلم میں برائلر گوشت کی قیمت 500 روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ بابر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ جہلم میں مرغی کے گوشت نے 5ویں سینچری مکمل کر لی ہے۔ شہریوں کی پہنچ یا مرغی کا گوشت بھی کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ دال، جو کہا جاتا تھا کہ گھر کی دال مرغی برابر، اب یہ مثال بھی کرامت نہیں رہی۔ مرغی تو ایسی بات ہم دیکھنے جو رہ گئے ہیں۔ مرغی اگے 200 روپے کلو وکتی سی، 500 روپے کلو وک رہی ہے۔ دالاں جہاں نے بالکل ہاتھ نہیں لگانے دینی ہے۔ شہری دہائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں۔ اب اگر مہنگائی ایسی رہی تو غریب مجبور سے مجبور تر ہوتا رہے گا۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔ دھنوٹ میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمت کو پر لگ چکے ہیں۔ برائلر گوشت 430 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شاہد بلال رپورٹ کریں گے۔ برائلر کی دھواں دھار اننگز جاری، قیمت میں ایک روز کمی تو دوسرے روز پھر تیزی کا زور جاری۔ مٹن بیف خریدنا تو غریب کے لیے پہلے ہی خواب تھا، اب برائلر مرغی کا گوشت کھانا بھی غریب آدمی کے لیے خواب بن گیا۔ روپے کلو مل رہا ہے، ہوں 450 روپے کلو ہے۔ بڑا گوشت یہ ریٹ ہے، ہوں چھوٹا گوشت ریٹ سے پوجا غریب کن ونجے۔ فی کلو قیمت 430 روپے ہو گئی۔ 430 روپے ہونے کے ساتھ گوشت کی قیمت سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ رجحان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پانی کی قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک توفیل رپورٹ کریں گے۔ گرمیاں آتے ہی رجحان میں پانی کی قلت شدید ہو گئی۔ مختلف وارڈوں میں کئی روز سے پانی غائب ہے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے مختلف وارڈوں میں کئی روز سے پانی کی فراہمی سے محروم ہے۔ رجحان شہر کے بیشتر وارڈوں میں مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ میونسپل انتظامیہ کے مطابق واٹر سپلائی کی موٹریں جل گئی ہیں تو ریپیئرنگ کے لیے دیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں پانی کی عدم فراہمی سے معاملات زندگی متاثر ہیں۔ گھروں میں پانی ختم ہو گیا ہے، آئے روز موٹریں جل جاتی ہیں، جبکہ منتخب نمائندے صرف ووٹ لینے آتے ہیں۔ اس درینہ مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آئے روز پانی کی بندے سے ذہنی اذیت کا شکار بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ رجحان میں تیسرا دن ہے پانی نہیں ہے۔ اگر پانی آتا ہے تو بدبودار پانی آتا ہے اور بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا چلوں کہ تحصیل رجحان میں واٹر سپلائی کا نظام بالکل ناقص ہے۔ آئے دنوں جب بھی 4-5 دن تو پانی آتا ہی نہیں ہے۔ شہروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ کیمرہ مین ملک گزار توفیل احمد کے ساتھ سچ نیوز، رجحان۔ خیر پور ناتن شاہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ بجلی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے۔ رجب علی رپورٹ کریں گے۔
خیرپور ناتھنجا بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا جاگ بن گئے. تحصیل کے نوائی گاؤں بگبلا کے مکین لوگوں کا وابڈا خلاف احتجاج. وابڈا خلاف زوردار نعرے بازی کی. مظاہرین کہتے ہیں کہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے. گرمیوں کے موسم آتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جان بوجھ کر اضافہ کر دیا گیا ہے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی بجلی فراہم نہیں کی جاتی. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچے بوڑھے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاریں لگی ہوئی ہیں یہاں پر ٹرانسفارم ہے لیکن لائٹ کا بہت بحران ہے. اتنے غریب لوگ ہیں, بل بھی بھرتے ہیں, اس کے باوجود یہاں لائٹ آتی نہیں ہے. علاقہ مکین لوگوں کا وابڈا سے بجلی فراہمی یقین بنانے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین اسلم چانڈے کے ساتھ رجب علی, سچ ٹی وی نیوز, خیرپور ناتھنجا. مانگا منڈی میں صفائی کی اب تک صورتحال ہے. انتظامیہ اور LWMC شہر کو صاف کرنے میں بری طرح ناکام ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے بہتری کا مطالبہ کیا ہے. محمد ارشاد رپورٹ کریں گے. مانگا منڈی میں انتظامیہ اور LWMC شہریوں کو صفائی کا بہتر ماحول دینے میں بری طرح ناکام ہوگا. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور LWMC سے جلد از جلد یہاں سے کوڑا اٹھائے. UC 263, UC 264, UC 265, UC 266 میں جگہ جگہ کوڑے کے پہاڑوں سے شہری پریشان ہیں. شہر میں کوڑا اٹھانے کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا ہے. مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف شکایتوں کے انبار لگاتے ہوئے کہا کہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں لیکن انہیں LWMC کا جو عملہ ہے وہ اٹھا نہیں رہا. جب بھی وہ کمپلین کی جاتی ہے تو سب اچھا کی رپورٹ کر دیتے. ایک آدھ پوائنٹ اٹھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کلیئر کروا دیا ہے. مختلف محلوں میں جو گندگی کے ڈھیر ہیں وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ LWMC کو متعدد بار ہم نے شکایات کی لیکن وہ اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن لیتے دکھائی نہیں دے رہے. گندگی کے ڈھیر, بدبو اور تعفن مانگا منڈی شہر کو جیسے نظر لگ گئی. جبکہ انتظامیہ کئی بار شہر کی صفائی کے دعوے کر چکی ہے لیکن یہ دعوے زبانی احکامات سے آگے نہیں بڑھے. علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ گندگی اٹھا کر اہل علاقہ کے مسائل کا خاتمہ کرے. ملک میں کورونا کی تیسری لہر کا زور کم نہ ہو سکا. وائرس سے مزید 92 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 20,400 تک جا پہنچی ہے. جبکہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 2,253 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 4.82% رہی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2,253 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,05,852 ہو گئی. پنجاب میں 3,35,577, سندھ میں 3,10,557, خیبر پختونخوا میں 1,30,187, بلوچستان میں 24,638, گلگت بلتستان میں 5,512, اسلام آباد میں 80,529, جبکہ آزاد کشمیر میں 18,852 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 92 افراد جاں بحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,400 ہو گئی. پنجاب میں 9,839, سندھ میں 4,936, خیبر پختونخوا میں 3,970, اسلام آباد میں 746, بلوچستان میں 270, گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 532 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 1,28,84,544 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,726 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 8,23,157 مریض صحت یاب ہو چکے جبکہ 4,723 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت نے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. حکومت کی جانب سے شام 6 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو دادو کے تاجروں نے مسترد کر دیا. شعیب تھیم رپورٹ کریں گے. سندھ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کے اوقات میں پھر تبدیلی کر دی ہے. سندھ بھر میں مارکیٹیں اور تمام دکانیں شام 6 بجے بند کرنے والے سندھ حکومت کے فیصلے کو دادو کے تاجروں نے مسترد کر دیا ہے. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے پہلے سے ہی کاروبار سخت متاثر ہوا ہے. رہی کسر لاک ڈاؤن نے پوری کر دی ہے. کم سے کم شام کا ٹائم جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے آرام سے خریدیں. تھوڑا ٹائم دیں گے رش ہوگا, زیادہ ٹائم دیں گے رش نہیں ہوگا. کاروبار وغیرہ ہوتا ہی اکثر شام کے ٹائم ہے. دوپہر کے ٹائم یہاں ہمارے علاقے میں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اور لوگ جو ہے یا تو صبح نکلتے ہیں یا شام کو نکلتے ہیں. دکاندار اور تاجروں کا مزید کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار سخت ہو رہا ہے. کاروبار کے اوقات میں اضافہ کر کے تاجروں کو ریلیف فراہم کیا جائے. معاشی قتل عام میں بھوک بدحالی اور بڑھے گی. آپ کم از کم 10 بجے تک ٹائمنگ نہیں دے سکتے تو 8 بجے تک تو ٹائمنگ دیں, دکانیں کھلنے کی. دادو کی تاجر برادری نے سندھ حکومت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹیں اور دکانیں شام 6 بجے کی بجائے رات 8 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کا پہیہ چلا سکیں. شعیب تھیم, سچ ٹی وی, دادو.
सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र सिंध भर में शाम 6 बजे दुकानें बंद करने के फैसले से टंडोलायार की ताजिर बिरादरी भी परेशान दिखाई देती है। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र सिंध भर में 2 हफ्ते के लिए शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन के ऐलान के बाद टंडोलायार की ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा है। ताजिर बिरादरी गुज़िश्ता लॉकडाउन और रमजान मुबारक समेत ईद उल फितर के दौरान होने वाले नुकसानात की भरपाई नहीं कर पाए कि एक बार फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि शहर भर में टाइम की कमी के पेश नज़र शहरी 6 बजे से पहले अपनी जरूरियात की अशिया लेने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। फैसला जहाँ तक हम ताजिर इत्तेहाद और ताजिरों का सवाल है तो फैसला हमारे समझ से बाहर है, लेकिन मजबूरी ये है कि हुकूमत की बात को भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो मैं उनसे ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन या जो मर्ज है ये 6 बजे के बाद से शुरू होता है। सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को कोरोना वबा से बचाने के लिए सख्त इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम बिना किसी खौफ के हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और आवाम बगैर मास्क और फासला बरकरार रखने की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज, टंडोलायार। मुल्तान और गिरदोनवा में मुनाफाखोर बेलगाम हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान और गिरदोनवा में महंगाई ने अपने डेरे बरकरार रखे हुए हैं। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम आवाम के मुंह से रोटी का नवाला ही छीन लिया है। गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। आई थिंक टोटली असर होता है, क्योंकि देखिए अगर किसी को खाने को नहीं मिलेगा या वो डिसहार्ट होगा तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का हक बनता है, उन्हें देखना चाहिए कि यार ये गरीब आदमी की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। फलों की कीमतें भी आसमान को पहुंची हुई है। दाल रोटी के घन चक्कर में फंसे आवाम के लिए फल फ्रूट खरीदना तो ख्वाब बन चुका है। बढ़ती महंगाई ने मुतवस्सित तबका की कमर ही तोड़ कर रख दी है। हर चीज महंगी है, गवर्नमेंट कुछ रेट देती है और शॉपकीपर और कुछ रेट देता है। आवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियों की फालियत को बेहतर करे ताकि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और आवाम को कंट्रोल रेट पर अशिया की फरहमी मुमकिन की जा सके। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। रायविंड में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। शहर में रोटी की कीमत 10 रुपए तक जा पहुंची है। इलियास चौधरी रिपोर्ट करेंगे। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में अज़द इजाफा कर दिया। गरीब अवाम के लिए 2 वक्त रोटी खाना भी मुहाल हो गया। रायवंड समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिले इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। एक हफ्ते कबल 850 रुपए में फरोख्त होने वाला आटे का थैला 1070 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया है। रोटी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं फ्लोर मिल मालकान ने आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। कसर से अल्लाह खैर के ने कट दिया। नवे वजीर आजम ने जो नवा वजीर आला है ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 1300 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 20 ਕਿਲੋ, ਕਿਤੇ 1100 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। गरीब आदमी पहले ही बड़ा परेशान सी। चीनी घी वगैरह तो पहले बहुत ज्यादा महंगे हो चुके ने और तब्दीली सरकार ने रहंदी सहंदी कसर आटे की शक्ल दे विच भी कट दी है। नान भाइयों का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफे के बाद पुरानी कीमत पर रोटी की फरोख्त करना मुमकिन नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमत में कमी लाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाए। कैमरामैन मलिक अली के साथ इलियास चौधरी, सच न्यूज, रायवंड। झेलम की तहसील दीना में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। के गोश्त की कीमतों में मुसलसल होशरुबा इजाफा जारी है। मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो तक पहुंचकर अवाम की दस्तरस से बाहर हो गया है, जबकि दीना के मुज़ाफ़ाती इलाकों में चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से मुर्गी के गोश्त के मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। मुर्गे का रेट बहुत ज्यादा हो चुका, कोई 480 बेच रहा, कोई 500 बेच रहा, कोई 520 बेच रहा। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे के बायस मुर्गी फरोश भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सेल में वाजिया कमी हुई है और खरीदार न होने के बराबर हैं। गोश्त महंगा होना साढ़े कारोबार तो बहुत फर्क पै गया। कस्टमर है को नहीं, बिल्कुल को नहीं, रेट इतना तेज है। मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो गाय के गोश्त की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा करके 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज। वजीर आजम और वजीर आला की आमद मुतवक्के लिया में गुजरगाहों को चमकाने का काम जारी है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे।
वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के मुतवक्के आमद, लगिया में हटो बच्चों की आवाजें, शाही सवारी की गुजरगाहें कई दिनों से चमकाने का काम जारी। कभी नजर न आने वाला म्युनिसिपल अमला कीड़ू मकोड़ों की तरह उमड़ आया। गुजरगाहों पर जहां सड़कों की धुलाई का काम जारी है तो वहीं टूट फूट का शिकार शहरात, कचहरी रोड और अस्पताल रोड के गड़ों को पंक्चर लगाकर अपनी नायली को छुपाने का काम भी अरूज पर है। चौक आजम से म्युनिसिपल अमला तमाम मशीनें समेत मंगवा लिया गया, जबकि चौक आजम में म्युनिसिपल सर्विस मुअत्तल हो गई। वजीर आजम और वजीर आला की मुतवक्के गुजरगाहों के अलावा बाकी शहर गंदगी से अटा पड़ा। गली मोहल्लों में गंदा पानी जोड़ों की शक्ल अख्तियार कर चुका। लगिया में अंदरूनी शहर तमाम म्युनिसिपल सर्विसेज मुअत्तल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्सेस दे अवाम जबकि प्रोटोकॉल एंजॉय करे अशराफिया। तरीके इंसाफ जो कि अशराफिया पर तनकीद करते थकती नहीं थी, अब जबकि खुद इक्तदार में आई तो उसके लीडरान के अंदाज अतवार भी अपने पेश रवों से मुख्तलिफ नहीं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साच न्यूज, लगिया। कोटद्दू में 2010 में आने वाले सैलाब से पुल मुतासिर होने से 5 मौजा जात का जमीनी राब्ता खत्म हो गया था, जिसे अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस आज तक नहीं बनाया जा सका। लोगों ने मजबूर होकर कश्तियों को आमद-ओ-रफ्त का जरिया बना लिया है। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटद्दू के नवाई इलाके हाकी सिपर के मकाम पर हाकी पुल का राब्ता जो कि 2010 के सैलाब में शिगाब पड़ने से खत्म हो गया था। ये पुल 5 मौजा जात को शहर से मिलाता है, जिसमें मौजा भत वाली, मौजा लोंबड़ वाली, मौजा निशान वाली, मौजा छजड़े वाला, मौजा खादे वाली शामिल हैं। पुल जरिए तो हाकी वाली त्रुट गई है, लिहाजा सब कहीं नहीं बनवा रही थी, ना पिछली हुकूमत बनवा रही थी, ना पहली हुकूमत बनवा रही थी। कोई कहानी सुझाव दिया। इन मौजाजात के रिहायशियों को बच्चों को स्कूल भेजने, मरीजों को हस्पताल ले जाने और दूसरे कामों के लिए आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। पुल सारा रास्ता खराब थी गए, दाए दीन पला कर 50 हा किसी पर सबको अमल वञण थी बहु परेशानी थी। 5-4 मौजे रात को मरीज को एमरजेंसी की सूरत में कश्ती नहीं मिलती, जिसकी वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इन मौजाजात के अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है कि 2010 के सैलाब के बाद इस पुल का राब्ता इन मौजाजात से मुनक़ता हो गया था, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटद्दू। बसारत से महरूम नौजवान ने माजूरी को अपनी मजबूरी न बनने दी। आरेवाला के नवाही गांव के नाबीना रिहायशी दफ बजाकर खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश करता है, जिसे सुनने वाले झूम उठते हैं। जावेद रज़ावट्टू की रिपोर्ट। ये है आरीवाला के गांव 35 का रहायशी नौजवान वासिफ अली, जो कि बचपन से ही आंखों की बिनाई से महरूम है। 27 साल वासिफ अली दफ बजाकर ऐसे खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पढ़ता है कि सुनने वाले दाद दिए बिना नहीं रह सकते। नाबीना नात खां वासिफ अली का कहना है कि मजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी दिलकश आवाज के जरिए अपना नाम पैदा किया है। तभी तो वासिफ अली सोशल मीडिया पर खूब पजीराई हासिल कर चुका है। बचपन से मैं ये सरकार की नात जो है वो दफ के साथ पढ़ता आ रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ भी जाता हूँ तो महफिल नात के ऊपर या मजहबी तकरीबात के अंदर जाता हूँ मैं, तो लोग अपनी मोहब्बतों का, इज्जतों का इजहार करते हैं। अभी कोई परेशानी होती है तो हम इनके पास इकट्ठे होकर आ जाते हैं। जब बोरियत महसूस करते हैं तो इनके पास आकर ये आका अलैहिस्सलाम की सनाखानी बड़े एहसन अंदाज से हमें सुनाते हैं। बिनाई से महरूम इस सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिफ अली का कहना है, अगर मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो मैं इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तीसरे रोज भी जारी ये ऑपरेशन रेंजर्स और फौज की मदद तलब कर ली गई। मुतादिद डाकुओं को ठिकाने लगाकर कई कमीगाहों को आग लगा दी गई। सिंध पुलिस शिकारपुर के शहरियों को कच्चे के डकैतों से बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ है। मरकजी मुलजिम को 2 बेटों और दीगर 5 अफराद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार तेगू खान इग़वा बराए तावान और कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलव्वस था। मुलजिम तेगू के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। मुलजिम वारदातें करने वाले डाकुओं से हिस्सा वसूल करता था। कच्चा ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी जारी है। आरजी दफ्तर भी कायम कर दिया गया है। जराइम पेशा अफराद के ठिकानों का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। एक्शन के लिए ये फैसला किया गया है कि रेंजर्स और फौज के दस्ते बुलाए जाएंगे जो पुलिस एहलकारों की मदद करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में सीआईए और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अंधे कत्ल के मुलजिमान को
आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि डकैत गैंग के कब्जे से 50 लाख रुपए माली मसरूका बरामद करके 60 डाकुओं को गिरफ्तार किया। इरफान वड़ाइच रिपोर्ट करेंगे। मंडी भाउद्दीन पुलिस लाइन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि थाना सिविल लाइन के इलाका चुरंड पुल के करीब सनम खान नामी शख्स को और थाना सदर के इलाका ढोक कासम में इरफान नामी शख्स को नामालूम मुलजिमान ने कत्ल कर दिया था, जिस पर पुलिस ने अंधे कत्ल के मुकदमा में मकतूल सनम खान के कातिल ताजीम और मकतूल इरफान के कातिल अलियास को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया है। डीपीओ अनवर सईद किंगरा ने कहा है कि डीएसपी सीआई आमर शहीन गोंदल और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सुलेमान उर्फ सीमू मोटरसाइकिल चोर गैंग और शाहिद उर्फ शादू डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जा से 50 लाख रुपए का मसरूका सामान, कार, 12 मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी, नाजायज असला में 50 कलाशन को बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी भाउद्दीन। कबीरवाला के नवाही इलाके अब्दुल हकीम में कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। मस्जिद नूर और उसके मदरसे के लिए मुख्तस 6 एकड़ ज़राई अराजी पर माफिया ने पिछले 7 साल से कब्जा जमा रखा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। राहिल रियाज रिपोर्ट करेंगे। तहसील कबीरवाला के नवाही इलाका अब्दुल हकीम में कब्जा माफिया सरगर्म, इंतजामिया ने चुप साध ली। मस्जिद नूर और इसके मदरसा के लिए मुख्तस 6 एकड़ ज़राई अराजी पर माफिया ने पिछले 7 साल से कब्जा जमा रखा है। कबीरवाला के नवाही इलाका अब्दुल हकीम मोहल्ला फारूक आजम में अरसा तकरीबन 50 साल कबल अमिया मस्जिद नूर व मदरसा तालीमुल कुरान की बुनियाद रखी गई। इलाका के रिहायशी हाजी मोहम्मद गगड़ाना ने तकरीबन 6.5 एकड़ रकबा मस्जिद व मदरसा के लिए वक्फ कर दिया, जिसमें तकरीबन 1 कनाल रकबा पर मस्जिद व मदरसा तामीर किया गया। बाकी रकबा जो कि ज़राई था, जिसकी आमदन से मदरसा व मस्जिद की तामीर शुरू की गई थी और मस्जिद व मदरसा के अखराजात इसी ज़राई रकबा से पूरे किए जा रहे थे। पिछले 7 साल से कब्जा माफिया ने मस्जिद के लिए वक्फ की जाने वाले ज़राई रकबा पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी आमदन रुक जाने से मस्जिद नूर और मदरसा की तामीर भी रुक गई है और मदरसा में पढ़ने वाले तकरीबन 300 से जायद गरीब बच्चों के तालीमी व दीगर खाने पीने के अखराजात पूरे न होने से तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। इस मस्जिद नूर की ज़राई रकबे के ऊपर जो ये करीब ही तरेलियों वाली बस्ती है, वहाँ ये वाकिफ है, उसके ऊपर 6-7 साल से नाजायज कब्जा है। मैं यहाँ मस्जिद नूर में मोहल्ला फारूक आजम अब्दुल हकीम में बतौर मदरस और इमाम तकरीबन 14-15 साल हो गए। तो मस्जिद का कुछ ज़राई रकबा है, उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ चंद गुंडों ने। इमरान कमेटी, मस्जिद व मदरसा, खतीब, इमाम मस्जिद और सैकड़ों के हिसाब से अहलियान इलाका ने कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि मस्जिद व मदरसा का बस्ती कौसराबाद अब्दुल हकीम में मौजूद 6 एकड़ ज़राई रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर मस्जिद कमेटी के हवाले किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज कबीरवाला। दोआब सुल्तान खेल दौरा खाल के दर्जनों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PK-13 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट करेंगे। दोआब सुल्तान खेल के खाल के दर्जनों खानदानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिले में PK-13 के हल्का खाल दोआब सुल्तान खेल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक शमूलियत तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद जमीन खान थे। इस मौका पर नियाज़बर खान, साजिदुल्लाह, बिलाल, माजिद, वाजिद और दीगर अपने खानदानों, सैकड़ों साथियों समेत जुमात इस्लामी से मुस्तफी होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर पार्टी में नई शामिल होने वाले अफरादों को साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद जमीन खान ने खुश आमदीद कहते हुए पार्टी टोपियां पहना दी। शमूलियत तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रर ने कहा कि सुल्तान खेरदरा को माजी में निहायत पासमानदा रखा गया है और साबिक़ मेंबरानों ने यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलत देने में नाकाम थी। मुकर्रर ने कहा कि इलाके की तमाम महरूमियां खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि नाकाम हुकूमत की वजह से आवाम गुर्बत और महंगाई से परेशान हो चुके हैं और रोजमर्रा अशिया की कीमत में रोजाना के हिसाब से इजाफा हो जाती है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, सुल्तान खेरदरा, लोअर दीर। नारोवाल में ईंटों के भट्टों में ईंटों के साथ साथ लजीज गोश्त भी पकाया जाने लगा है। ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनफरिद डिश भट्टा गोश्त बेहद मकबूल हो रही है। सगीर शाह रिपोर्ट करेंगे। नारोवाल में भट्टा गोश्त की डिश मकबूल होने लगी, जो किसी भी तरह बाकी खानों से ज्यादा लजीज होती है। भट्टा गोश्त को दही, पुदीना, नमक और कटी हरी मिर्च लगाकर चंद घंटों के लिए रख दिया जाता है। फिर रद्दी कागज और एल्युमिनियम की शीट में लपेटकर कोयले से पकती सुर्ख ईंटों के ऊपर ईंटों के पाउडर में दबा दिया जाता है। 4 से 6 घंटों में लजीज और मुनफरद भट्टा गोश्त खाने के लिए तैयार हो जाता है। 4-50 घंटे बाद केरी दे विच नपदे ने, 4-50 घंटे बाद कटदे ने, तो ਉਹਦਾ बड़ा ही जायका
बना लो तुम दो यहाँ। जो एक बार इधर आता है वो बार बार इंशाल्लाह ताला आता है, तो एक बार जो खाता है ना इसका बहुत जबरदस्त टेस्ट है और इसका नुकसान कोई नहीं है। शहरी अपने दोस्तों के हमरा बटा गोश्त से लुत्फअंदोज होने के लिए मुख्तलिफ बटों का रुख करते हैं। शहरियों का कहना है कि तेल और मसालों के कम होने की वजह से बटा गोश्त लजीज भी है और जूद हजम भी। बटा गोश्त अपने मुनफरद तरीके से पकाए जाने भरपूर गजाइत और सादा डिश होने के बायस मकबूल हो रहा है। कैमरा और रिपोर्टर टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारवाल। तब्दीली सरकार के दावों से आवाम को रिलीफ तो न मिल सका। ताहम पसमानदगी से दो चार सूबा बलूचिस्तान में नाकिस तर्ज हुक्मरानी और आए रोज सामने आने वाले बहरानों से आवाम शदीद मायूसी का शिकार हो रहे हैं। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। वादी कोयटा और बलूचिस्तान के दिगर हिस्सों में यूं तो हुकूमती बेहिसी की शिकायत साबका दौरे हुकूमत में भी हर वक्त सामने आती रही हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आवाम को तब्दीली, तरक्की, महंगाई पर काबू पाने और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के असूल अपनाने के हवाले से अब तक जो भी दावे किए हैं उनमें से किसी को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। आवाम को दरपेश दरीना मसाइल हल न होने के बायस गंभीर होते जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि सूबाई मखलूत हुकूमत सिर्फ फर्जी दावों से आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। सर आवाम को तो बिल्कुल ये सरासर जुल्म है, इतना जुल्म है कि बिल्कुल कोई हद ही नहीं है। पहले कोई खाना पीना कोई चीज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मजदूरी नहीं मिल रहा है, इतना महंगाई, हर चीज महंगा। हुकूमती बेहिसी पर मायूसी का शिकार मुकामी शहरी कहते हैं कि बलूचिस्तान की पसमानदगी पर सियासत चमकाने वाली जमातों ने इक्तदार का हिस्सा बनकर अवाम के देरीना मसाइल को हमेशा नजरअंदाज किया है। तो हम लोगों ने कहा था कि इस हुकूमत में जो नहीं है काफी अच्छा होगा, काफी जो नहीं है बेहतर होगा आवाम के लिए और जो नहीं है गरीब आवाम के लिए, लेकिन ये कोई चीज उसमें कोई हमें देखने के लिए जो नहीं है कोई चीज नजर नहीं आई। ये फंड्स जिस जगह पे जो है फंड चाहिए आपको वहाँ पे खर्च नहीं होते, बल्कि उस जगह पे होते हैं वो मुख्तलिफ जो है इसके पीछे माफिया होते हैं, वो अपने कमीशन के पीछे होते हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों से बहरानों से दो चार सूबा बलूचिस्तान में इक्तदार का हिस्सा हमेशा मुकामी लोग रहे हैं, लेकिन सूबे की पसमानदगी का खात्मा और देरीना मसाइल के हल में उनकी संजीदगी पर हमेशा सवालात उठाए गए हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। अक्टूबर टेक्सिंग में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टा खिश्त बंद करवाने पर सैकड़ों मजदूरों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शहबाज चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। तोबा टेक्सिंग में लेबर कौमी मूवमेंट की जानब से जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टाजात बंद करवाने पर शहबाज चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ अंसारी ने की। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर मुतालबा दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरीन का कहना था कि हुकूमत मजदूरों को बेरोजगार करना चाहती है। एहतजाजी मुजाहरीन ने रेलवे फाटक को 2 घंटे तक बंद रखा, जिसके बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला इंतजामिया की तरफ से बार बार भट्टा इंडस्ट्री को जाके सील किया जाए भट्टाजात को, जिस पर भट्टा मालका ने भट्टे बंद करके तोबा टेक्सिंग के भट्टा मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। बाद असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर ने एहतजाजी मुजाहरीन से मुज़ाकरत किए और इनके जायज मुतालबात हल करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सिंग। गुरेवाला मंडी में गंदम की खरीदो फरोख्त की बंदिश के बाद गल्ला मंडी के मजदूरों ने असिस्टेंट कमिश्नर और आड़तियों के खिलाफ गले में रोटियां लटकाकर एहतजाजी धरना दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला गल्ला मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर और आड़तियों के माबैन तनाजे के बाद 5 रोज से आड़तियों की जानब से गंदम की खरीदो फरोख्त बंद होने से बेरोजगार होने वाले सैकड़ों मजदूरों ने गल्ला मंडी में गले में रोटियां लटकाकर एहतजाजी धरना दिया। धरने में शरीक मजदूरों ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को गंदम की खरीदारी बंद होने का जिम्मेदार करार दिया। जो कि गल्ला मंडी बुरेवाड़ा में हमारी मजदूरी का काम चल रहा था गंदम का, वो सरकारी गवर्नमेंट ने ऑफिसरों ने रल के हमारा कारोबार बंद कर दिया। हमारा लिहाजा ये है कि कारोबार चलाए वो आए, कारोबार चले, गंदम आएगी तो हमारा काम चलेगा, गंदम नहीं तो हम भूखे हैं। उनका कहना है कि मजदूरी ना मिलने से बेरोजगारी की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। उन्होंने डीसी विहाड़ी से गंदम की खरीदो फरोख्त बंद किए जाने का नोटिस लेने और रोजगार की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में डेंगू से बचाव और आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वॉक भी की गई। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट।
پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں ڈینگی سے بچاؤ اور آگاہی کے حوالے سے DHQ ہاسپٹل چکوال کے کانفرنس روم میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاسپٹل کے ڈاکٹر اور سٹاف نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے MSDHQ چکوال ڈاکٹر مختار سرور خان نیازی نے کہا کہ کرونا وائرس کے وباء کے ساتھ ساتھ اب ڈینگی کا موسم بھی قریب آ رہا ہے۔ جس طرح چکوال کی عوام نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی، اسی طرح ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بھی عوام کو احتیاط کرنا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ DHQ ہاسپٹل چکوال میں ڈینگی کے حوالے سے تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر فرزین نے ڈینگی سے بچاؤ کے بارے میں بتایا کہ آپ گھروں، دفاتر، ایسی جگہ جہاں پانی کے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور اپنے گھروں کی چھتوں، گلی کی نالیوں اور گھر میں موجود گونوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اگر ہم سب مل کر ان بات کا خیال رکھیں گے اور صفائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں اور دفاتر کو صاف رکھیں گے تو ہم ڈینگی سے بچ سکیں گے۔ سیمینار کے اختتام پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال سے آگاہی واک بھی نکالی گئی، جو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی تحصیل چوک پر اختتام پذیر ہو گئی۔ کیمرامین راجد تنویر حیدر کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال۔ آرے بالا میں میپکو کی جانب سے اوور چارجنگ اور ٹیوب ویل کے میٹرز کاٹنے پر کسان احتجاج نے دھرنا دے دیا ہے۔ نذیر کھرل رپورٹ کریں گے۔ میپکو کی جانب سے اوور چارجنگ اور ٹیوب ویل کے ایک میٹر کاٹنے پر کسان اتحاد چوری انور کا چوک مرلے پر دھرنا جاری۔ دھرنے سے بہاول نگر روڈ، لوڈان روڈ اور پاک پتر روڈ مکمل طور پر بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ طے شدہ شیڈیول کے مطابق بلوں کی پیمنٹ میپکو کو ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میٹر کاٹ دیے گئے۔ کسان اتحاد کا موقف۔ ایکسین خالد سیال کی جانب سے ٹیوب ویل کے کنیکشن کاٹنے کے باعث درجنوں کسانوں کی فصلیں تباہ ہوگی، جو پہلے ہی کورونا کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شدید شکار ہیں۔ کسان اتحاد کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری اور ٹیوب ویل کی کنیکشن کی بحالی تک دھرنا جاری رہے گا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ سرائے سدھو اور دیگر علاقہ جات میں محکمہ زراعت کی عدم دلچسپی سے آم کے باغات پر مختلف بیماریوں کا حملہ ہونے لگا ہے، جس سے پیداوار میں 50% تک کمی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کریں گے سید علی رضا۔ سرائے سدھو و دیگر علاقہ جات میں محکمہ زراعت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے آم کے باغات پر مختلف بیماریوں نے حملہ کر دیا، سے 50% تک کمی کا امکان ہے۔ باغات پر مختلف بیماریوں کا حملہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ آم کے بیپاریوں کو آم کی پیداوار میں شدید کمی کا سامنا ہے۔ کم پیداوار کے باعث منڈیوں میں آم کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سنڈی اور تیلے کی حملے کی وجہ سے آم کی پیداوار کا مقررہ ہدف پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس صورتحال کے باعث آم کی پیداوار متاثر ہونے سے نہ صرف باغبان پریشان ہے، برآمدات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ باغبان نے سچ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا، تے دوسرے بیماری ہاپر تیلے دی وجہ تو باغ تے بڑے برے اثرات پی رہے نے۔ باغ دے پھلت دے 50% کمی دا اندیشہ ہے۔ اس صورتحال کے باعث باغبان شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے افسران دفتروں تک محدود ہیں۔ باغبان نے DC خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی رضا نقوی، سچ ٹی وی، سرائے سدھو۔ موسم گرما کی سوغات آم کمالیہ کی مارکیٹ میں آ گئے شہری مختلف اقسام کے آم خریدنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ کمالیہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی فروٹس کی شاپ پر مختلف اقسام کی رنگ و نسل کے آموں کے سٹال سج گئے۔ خاص طور پر لنگڑا، سندڑی، سہارنی، چونسا مارکیٹ میں سرے فہرست ہیں۔ آم گرمیوں کے موسم میں قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ لوگ تو اس کے ذائقے کے بھی دیوانے ہیں۔ پھلوں کا بادشاہ آم اپنے ذائقے اور مٹھاس میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آم میٹھا ہونے کے ساتھ جسم کو ڈھیروں فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ آم ہے نا وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، لوگ خرید بھی رہے ہیں اور بکتا ہی بہت زیادہ ہے۔ جوس جڑا آم بدانا بہت لوگ پی رہے ہیں، آم بھی خرید رہے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ، آم بہت اچھا آتا ہے۔ پھلوں کے ذائقہ دار بادشاہ کے آم کے شوقیہ کھانے والوں کا کوئی حساب نہیں۔ قدرت نے اس مزیدار پھل میں بے شمار فوائد چھپائے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں بازار میں لوگ بڑی تعداد میں آم خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہیں آم کے شوقین شہری آم کا ملک شیک بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی آم کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ سکھر میں گنے کے شربت اور تھادل کے سٹال سج چکے۔ شہری گرمی کو دور بھگانے کے لیے سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ حاجی ریاض رپورٹ کریں گے۔ گنے کا شربت اور بادام، چار مغز، خشخاش، کالی مرچ، سفید زیرہ، مصری یا گڑ سے تیار کردہ بہترین مشروب جس کو تھادل کا نام دیا جاتا ہے، گرمی کے آتے ہی اس کے اسٹال شہر کے کونے کونے میں سج جاتے ہیں۔ گرمی کے اندر جو ہے یہ جو گنے کا جوس ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نیچرل چیزیں بنائی ہیں ان میں یہ گنا جو ہے ایک بہترین چیز ہے، اور اس کا جوس جو ہے گرمی کے موسم میں
जो इंसान के अंदर जिगर की हिद्दत बढ़ जाती है या जिगर की जो बीमारी जिसको हम जो है ऑलरेडी जो है जॉइंटिस कहते हैं, उसके हवाले से भी ये गन्ने का जूस जो है वो बेहतरीन है। गर्मी से बचाए दिल को राहत व सुकून व फरहत देने वाला बेहतरीन मशरूब गन्ने का शरबत और थादल, जिसके पीने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स व दीगर जूसेस से वक्ती तौर पर ठंडक तो मिलती है, लेकिन बाद में ये जिस्म की हरारत को बढ़ा देता है। इसके मुकाबले में नेचुरल मशरूब गन्ने का शरबत या थादल का एक गिलास पूरा दिन सुकून व ठंडक फराहम करता है, जिगर की हिद्दत को कम करता है। यरकान के मरीजों के लिए गन्ने का शरबत आब हयात है। अक्सर मुआलिजीन गर्मी में गन्ने के शरबत को अक्सीर का दर्जा देते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे शहर सखर में बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है। इसकी वजह से ये गन्ने का जूस जो है आम चल रहा है, हर लोग पी रहे हैं। नेचुरल चीजों से तैयार फ्रेश व खालिस और केमिकल से पाक मशरूब थादल और गन्ने के शरबत का मुकाबला डब्बे में पैक मशरूब नहीं कर सकते। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, खोखर, सच न्यूज, सखर। सनावा में गर्मी का तोड़ कुदरती और खालिस अशिया से तैयार करदा बादामों का घोटा बेहद शौक से पिया जाता है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। जनूबी एशिया में गर्मियों में खालिस और कुदरती अशिया से मशरूब तैयार किया जाता है, जिसे बादामों का घोटा या सरदई कहा जाता है। इसको तैयार करने में खसखस, बादाम, सफेद जीरा, सौंफ, गरी, काली मिर्च और छोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। लोग गर्मी भगाने के लिए और मैदे को ठंडक पहुंचाने के लिए बड़े शौक से पीते हैं। वैसे घोटा स्पेशल बना है बादाम वाला, गर्मी दे विच अहम चीज है। ये जड़ा घोटा है ये सारे इलाके दे विच ये गर्मी को दूर करने वास्ते ये बेहतरीन देसी नुस्खे नाल बादाम ते खसखस दे नाल तैयार कीता वेंदे। बादामों के घोटा तैयार करने वालों का कहना है कि घोटा तैयार करने के लिए गर्मी की शिद्दत को कम करने वाले कुदरती अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी की शिद्दत लोग बड़े शौक नाल आके पीने ने। असा घोटा बड़े अरसे तो तैयार करने 10 साल तो साडा तजर्बा है। ये बहु आला चीज है कि असा खुद ही कुदरती चीजें नाल है जरा इनको इस्तेमाल बनाने हैं तो इनको करने। सड़क के किनारे पर वाक़े घोटा पॉइंट्स पर शदीद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बादामों का घोटा लोग शौक से पीते हैं। कुदरती और खालिस अशिया से तैयार करदा बादामों का घोटा गर्मियों का एक बेहतरीन तोहफा है। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही सांगला हिल में जगह जगह सरदाई के स्टॉल सज जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे नदीम अख्तर भट्ट। मई जून का महीना हो तो सुबह सूरज की आंख खुलते ही गर्मी की शिद्दत शुरू हो जाती है। गर्मी के मौसम में प्यास को कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पंजाब का मशहूर मशरूब सरदाई अपनी मिसाल आप तस्वर किया जाता है। गए वक्तों में सरदाई को सिर्फ पहलवानों की खुराक समझा जाता था, मगर अब गर्मी का मौसम शुरू होते ही सरदाई के स्टॉल सजा दिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, सरदाई वाली दुकानों पर रश बढ़ जाता है। मैं भी शहर से नहर किनारे लगी सरदाई पीने आया हूँ। सरदाई पीने से कई घंटे प्यास नहीं लगती। सरदाई में बादाम, खुशखास, काली मिर्च, जीरा, छोटी इलायची और चारों मगज शामिल करके मशरूब तैयार किया जाता है, जो जायके और अफादियत में अपनी मिसाल आप है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट shtv.pk। देखते रहिए सच।